أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الله أكبر. والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. بہت شکریہ. آج سورہ رحمان کی آیت نمبر 10 سے 13 تک تلاوت کی گئی. اس کا ترجمہ ہے: اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول. تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور آج کا ٹاپک جس پہ ہمارے علماء گفتگو کریں گے، مہنگائی کا جن قابو کیسے ہوگا. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تو امریکہ پڑھنے گیا. تو وہاں جب میں گزرا، مطلب جب ایک جگہ میں گیا جہاں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، تو وہاں دل نہیں لگا میرا، اور نہ وہاں پیٹرولیم انجینئرنگ تھی. تو میں نے کہا ایک کام کرتا ہوں، خود ہی کال کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کسی اور یونیورسٹی میں اگر ایڈمیشن مل سکتا ہے. تو وہاں میں نے ایک اور یونیورسٹی میں جو مونٹانا میں تھی، وہاں میں نے کال کیا، انہوں نے مجھے ایڈمیشن دے دیا. تو ایک سمر گزارنے کے بعد میں شدید سردی کے عالم میں وہاں گیا. اس جگہ کا نام ہے بیوٹ، مونٹانا. مونٹانا اسٹیٹ ہے، بیوٹ کا نام، بیوٹ اس شہر کا نام ہے. تو میں وہاں پہنچ گیا. وہاں حیرت انگیز معاملہ تھا. 2-4 ہی پاکستانی ہندوستانی تھے، باقی سب کے سب امریکی لوگ وہاں رہتے تھے.
اور اسکول یعنی کہ جس کو کالج ہم کہتے ہیں وہ بہت بڑا کالج تھا اور بہت اچھا کالج تھا, اور پیٹرولیم انجینئرنگ کے پہلے 10 بہترین کالجز میں سے ایک کالج تھا. میرے جو ڈین تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر ڈینیل براڈلے, اور مجھے جو ریزروار انجینئرنگ پڑھایا کرتے تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر طارق احمد. جن کے ساتھ میں نے انوائرمنٹل انجینئرنگ سیکھی ان کا نام تھا ڈاکٹر گنیشن, اور جو میرے ریاضی کے استاد تھے وہاں ان کا نام تھا ڈاکٹر نریندر پانڈے. یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے میری رہنمائی کی وہاں رہتے ہوئے, بیکاز میں بہت چھوٹا سا تھا. وہاں پر بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ نہیں تھا. جیسے میرے اپنے ایڈوائزر ڈاکٹر گلبرٹ کیڈی, ان کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن سم ہاؤ ان کی زندگی میں گزارا ہو جاتا تھا. اسی طرح سے باقی اور لوگ تھے جن کے پاس پیسہ نہیں تھا مگر گزارا ہو جاتا تھا. جو مجھے سب سے بڑا شوق ملا وہ یہ ملا کہ جب پہلی کرسمس آئی تو سب نے مجھ سے کہا باہر چلو دیکھتے ہیں کہ کیا. بیوٹ بہت ٹوٹل 30,000 لوگوں کا شہر تھا. ایک مال تھی اور وہیں سب کچھ تھا. سینما بھی وہیں تھا, چیزیں بھی وہیں تھیں. وہاں کا جو ٹاپ سٹور تھا وہ وولورتھ کہلاتا تھا, جو بعد میں بند ہو گیا تھا. تب میں وہاں پہنچ گیا. اب جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ چیزیں مسلسل سستے پہ لگی ہوئی ہیں, اور میں بڑا پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے. $1 کے اندر چیزیں مل رہی ہیں. لوگ آ رہے ہیں, وہ لوگ آ رہے ہیں جو ٹریلر پارک میں رہتے ہیں. ٹریلر پارک وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں جو لیس فارچونیٹ ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وہ لوگ وہاں رہتے ہیں. تو وہ لوگ آ رہے ہیں, وہ بھی شاپنگ کر رہے ہیں. جو وہاں کا امیر طبقہ ہے وہ بھی آ رہا ہے, جو غریب طبقہ ہے وہ بھی آ رہا ہے. اینڈ سم ہاؤ سب کے اندر ایک اسپرٹ ہے. میں بڑا بہت حیران ہوا کہ یار یہ تو بڑی کمال بات ہے, بڑا اچھا معاشرہ ہے. اس کے بعد دور گزرا, آہستہ 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 میں شعور کی منزلوں سے قدم بڑھاتا ہوا اور میں اپنی عمر کی منزلوں کو طے کرنے لگا. یہ بات یاد رکھے گا, شعور کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شعور کی وجہ سے عمر ہوتی ہے. نہیں, کبھی کبھی بہت بڑی بڑی عمر کے لوگ انتہائی غیر شعوری باتیں کرتے ہیں. خیر, تو میں پھر بہت عرصہ گزر گیا اور میں پاکستان آیا. جب پاکستان آیا تو یہاں ایک لفظ میں نے سنا, گزارا نہیں ہوتا. گزارا نہیں ہوتا. اب یہ بات ہے 2005 کی, آج ہم 2025 میں ہیں. ان 20 سالوں میں الحمدللہ یہ 3 لفظ چینج ہو کے نہیں دیتے. گزارا نہیں ہوتا. کوئی پوچھے کہ بھائی گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ بس نہیں ہوتا گزارا. کیوں نہیں ہوتا؟ دودھ مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, پانی مہنگا ہے, تعلیم مہنگی ہے. بس اسی قسم کی جلی بھونی باتیں کریں گے ہم آج سب کے سب مل کے, اور آپ ہمیں دیکھیے گا, آپ بھی باتیں کیجیے گا. کر تو ہم کچھ بھی نہیں سکتے, باتیں تو کم از کم کر سکتے ہیں. باتوں سے ہو سکتا ہے کچھ حالات بدل جائیں, ہمارے ان کے نہیں بدلنے والے, کیونکہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہمارے ملک میں 2 قسم کی زندگیاں لوگ گزاریں گے. ایک وہ جن کی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں, اور دوسری وہ زندگی جو ہماری اپنی ہے جس کی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں. دونوں صورتوں میں کوشچن ہمارا ہی ہے. ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو اپنے علماء سے بات کروں گا. آج ان سے پوچھوں گا مہنگائی کا جن قابو کیسے کر سکتے ہیں. رمضان ہے, رمضان کے بعد عید ہے, عید کے بعد شادیوں کا سیزن ہے, ہوگا کیا؟ بریک کے بعد. میرے کملی والے کی
سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، سینے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھوڑا سا اس کو ریز کر دیجیے گا، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، میمونہ مرتضیٰ ملک صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، علامہ شاعرہ نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، السلام علیکم، ابراہیم نقشبندی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک عام کانسیپٹ ہے کہ جی مہنگائی بہت ہے، گزارا نہیں ہوتا، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مالز بھی اسی طرح سے ہیں، شاپنگ بھی ویسی ہی چل رہی ہے، گاڑیاں بھی روڈ پہ زیادہ ہیں، صرف قصہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ شاعر بھائی، پہلے تو یہ تعین کر لیجئے کہ قرآن و احادیث کیا کہہ رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، صرف ایک جملے میں۔ ذخیرہ اندوزی پر بھی بات کی، رویوں پر بھی بات کی، معاشرتی ثقافتی ترقی پر بھی بات کی، لوگوں کی خدمت پر بھی بات کی، دین اسلام کی بات کر رہا ہوں، احساس پر بھی بات ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کا عزت اور حرمت کا خیال رکھنا، اور علم کی بات بھی کی، بزرگان دین کی بھی بات کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے جو آپ نے پیراڈائمز بنائے ہیں یا پیرامیٹرز آپ نے سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے سیٹ کیے ہیں، آج یہ سارے پیرامیٹرز جو دین اسلام کے ہیں وہ ہم اپنے معاشرے میں، جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس میں ہم تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ بغیر تلاش کے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں نہیں کہتا کہ فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، شاید میرا اپنا اس میں سب سے، شاید نہیں بلکہ یقیناً میرا اپنا بہت بڑا کردار ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک پل میں بہت امیر دیکھنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے جب میں امیر دیکھنا چاہتا ہوں تو میں وہ سارے راستے اختیار کروں گا جو کسی بھی معاشرے کے لیے عمارت تک یا امیری تک لے جائے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ آپ نے ایک بات کی تھی سرنامہ کے، ویسے تو بہت ساری باتیں کی آپ، لیکن ایک بات ہے کہ مال بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، ابھی سوال کے ساتھ ہی، اور یہ پورا معاشرہ، آپ یقین جانیے بارہا میں یہ سوچتا ہوں کہ جن گاڑیوں سے جو لوگ اترتے ہیں اور جس انداز سے وہ آتے ہیں، اللہ بہت دے، ہم کہتے ہیں پروردگار اگر وہ محنت کر کے آ رہے ہیں، رزق حلال لے کر آ رہے ہیں، تو رزق حلال سے جو آنے والا ہے ان گاڑیوں کے اندر، اس کا رویہ الگ ہوگا، کیونکہ اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ اتر رہے ہیں تو انسانوں کے معاشرے میں اتر رہے ہیں۔ لیکن غربت دو، اور یہ جو امیر لوگوں کا طبقہ ہے، اس نے دو متضاد رویوں کو جنم دیا ہے۔ آپ نے بار بار ایک بات کہی نا، نظام تعلیم، اسکولز دیکھ لیجئے، فلاں دیکھ لیجئے، نظام زندگی میں ہی دیکھ لیجئے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے، جس معاشرے سے ہم مخاطب ہیں، یہ میرا معاشرہ ہے،
इस मुआशरे में हम जो पल बढ़ रहे हैं और जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें आपने जो पूछा था कि महंगाई का जिन कैसे काबू हो, महंगाई कैसे काबू हो। भाई बात यह है कि हम आदी हो गए हैं एक दूसरे के साथ तफाखुर के। अगर आपने ये घड़ी फर्ज करें कि $500 में ली है, तो अब जब तक मैं $5000 की नहीं ले लूँगा मुझे सुकून नहीं आएगा। जब तक आपने एक मकान जो बनाया है उस मकान के मुकाबले में मैं बात ना करूं कि मेरा मकान बड़ा हो और महल नज़र आए, कैसल नज़र आए और पता नहीं क्या क्या नज़र आए, उस वक्त तक सुकून नहीं आएगा। उसके लिए किन रास्तों से जाऊंगा, क्या जाऊं, इसका मजबूर। एक मैं उसके बाद कथा कलाम आप सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कितना बड़ा महल बना लो, वो जो 6 फीट गहरी कब्र है वो एक जैसी होती है। उसको कौन याद करता है? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। आप यकीन जानिए बहुत सारे ऐसे लोग कब्रिस्तान में, आपने देखा लोगों का रवैया, जी जी, वहाँ खड़े हुए सिगरेटें पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने कब्रिस्तान जाने की हिदायत क्यों फरमाई थी? ताकि तुम अपनी आखिरत को, अपनी मौत को और अपने आप को इस जगह पर देख सको। आज हम जिस महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, उस महंगाई के दौर में किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं वो दौड़ रही हैं, और जो ज़िंदगी की शाहराहों पर तरक्की की बज़ाहिर तरक्की जिसको हम कहते हैं, अखलाकी इन्हितात के बावजूद भी जिसे हम तरक्की कहते हैं, वो हमें नज़र आ रहा है। और पता नहीं कितनी बातें हैं जो जहन में आ रही हैं, लेकिन आज सब बोलिएगा ना, बोलने का वक्त है, बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। मैं बस एक जुमला से बोलकर मैं बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप अहबाब की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर है हम सब कुछ कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि हम कितने लोगों की हक तलफी करके और कितने लोगों के सीनों पर अपने कदम रखकर और कितनी लाशों पर से गुजर कर हम अपने महल्लात की तामीर कर रहे हैं। मैं इसी बात को ले लेता हूँ, यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं। आप जवाब दे दीजिए इसका कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हक तलफी भी करते हैं, उनको रोनते भी हैं, रोने के बाद हमें एहसास तक भी नहीं होता, हम दूसरों का हक मार जाते हैं, क्या वजह है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ तवज्जो ही नहीं है, और आपने इब्तिदा में बड़े खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ़ गोशों पे, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुख्तसर और मुफीद रोशनी डाली। मसला तालीम का नहीं है, मसला शऊर का है। ये जो बुनियादी बीमारी है हम सब के अंदर, और फ़ारसी में कहते हैं चश्मा चश्मी, जैसे उर्दू में कहते हैं देखा देखी। ये जो हज़रत फरमा रहे हैं कि बिला डॉक्टर साहब के हम एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को रौंदते चले जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि माह मुबारक रमज़ान है, मज़हब की बात भी कर रहे हैं, तो मज़हबी एतबार से भी अगर अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से सरफराज किया कि उसने हमें अपना मानने वाला बना दिया, हमें कम से कम इतना दे दिया कि हम उसके मानने वाले हैं। बहुत से लोग इस नेमत से महरूम हैं, यहाँ तक कि हदीस में है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मालदार हैं, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन अल्लाह उन्हें अपने दर पे झुकने की तौफीक अता नहीं करता। उसने ये हमें दे दिया है, तो उसके बाद फिर नफ्सा नफसी कैसी, फिर जो है इस आलम में कि बस जो हो हमारे पास हो, जो दिखे बस वो हमारा अच्छा हो और हम किसी मकाम पर हों। ऐसा मुमकिन है? कई दफ़ा हुआ, बहुत से लोग बहुत से बड़े बड़े मकामात पर पहुँचे बग़ैर इसके कि किसी को नुकसान पहुँचाएं, बग़ैर इसके कि किसी को ज़रर पहुँचाएं। फ़र्क इतना है कि जो बग़ैर ज़रर पहुँचाए किसी मकाम पर पहुँचते हैं वो यादगार बन जाते हैं। क्या बात है, क्या अच्छी और बात कही। जो रोनते हुए चले जाते हैं फिर उन्हें याद नहीं किया जाता। ये बड़ा जो है सर वो, लेकिन इसकी वजूहात क्या है? क्या हमने अमली तौर पे हमने इस्लाम को यहाँ से कबूल नहीं किया है कि हम उस, मतलब मुझे खौफ इस बात का है कि कुरान शरीफ में बार बार इन चीज़ों का जिक्र आया है, तो क्या हमने अमली तौर पे हम सिर्फ कहने वाले? लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। ये है असल में नफ्सियाती मसला जो क़िबला बात यही है। बात असल में यही है कि बार बार कुरान में बारहा अमल की बात हुई है। जो उस दिन आप इसी नशस्त में जो है फरमा रहे थे कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये जो अमिलुस सालिहात है उसको बार बार कहा गया। यहाँ तक कि सूरह मोमिनून में आयत नंबर 50। तो हम किधर चले गए? आई एम सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ, और मैमुना आप भी इसमें। सियासत में तो ये कहा जाता है कि अगर अपनी बात से आप मुकर जाएं तो कोई बात नहीं है, यू टर्न ले लें तो कोई बात नहीं है, सभी जायज़ है।
मतलब मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, खुदा रहा ये इसको किसी कनेक्ट मत कर दीजिएगा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, हर आदमी जो वादा करता है वो अजीब ही सी बात होती है, वो पूरा ही नहीं होता कभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिर वो पूरा हो कैसे सकता है? इसलिए कि किसी एक तबके की तमाम तर सहूलियात के लिए किसी दूसरे को रौंदा जाता हो। और फिर देखिए इस्लाम क्या चाहता है, मुआखात और अंसार वाला जो केस है वो पूरी दुनिया के लिए क़यामत तक के लिए मिसाल है। अब वो क्या था, यानी जिसके पास एक कमरा भी है तो वो उसने उसके 2 हिस्से कर देने हैं, बीच में पर्दा लगा के अपने एक भाई को देना है। और अल्लाह मियाँ ने सिर्फ 3 लफ्ज़ कहे, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, और भाईचारे की तफसील ये बता दी कि तुमने अपना पेट काट के उसको पालना है। और उसकी बेहतरीन मिसाल क्या थी कि खेती बाड़ी अहले मदीना को आती थी, मुहाजिरीन इससे वाकिफ़ नहीं थे। अब अहले मदीना खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो फसल आ रही है वो आधी मुहाजिरीन में आधी उनमें तकसीम हो रही है। अपने लिए ईसार जो है अपनी ज़ात पे करके, अब अगर फ़र्ज़ कीजिए एक चीज़ महंगी हो गई, कपड़े महंगे हो गए, क्या सभी को ब्रांड्स पहनना ज़रूरी है? फल महंगा हो गया तो क्या हम नहीं सोच सकते कि गरीबों को नहीं मिल रहा तो हम ना लें, ताकि वो जो महंगा कर रहे हैं वो मजबूर होके कि वो गल सड़ जाएगा, सस्ता कर दें ताकि हम सब ले सकें। बात ये है कि ये जो सोच है, ये जो लफ्ज़ बोला ना शऊर, इस्लाम हमें लिखी हुई आयत को पढ़ के सजा के देने के लिए नहीं आया है। इस्लाम अमली ज़िंदगी का नाम है और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। मुझे बताइए कि हम तो जन्नत में पैदा हुए, जन्नत में रुके, जन्नत ही असल मकाम है, वहीं जाएंगे। ये ज़मीन पे भेजा क्यों? ये इन्हीं बातों के लिए भेजा है, इन्हीं आजमाइशों के लिए भेजा है। और उसमें अगर हम लोग मुसलमान मिन हैसुल कौम, एक सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बनने की देर है, पूरी दुनिया में कोई किसी मुसलमान पर ज़्यादती नहीं कर सकता। मगर उम्मत बनेंगे कब? जब तक थे 800 साल तक पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, क्योंकि एक उम्मत थे तो किसी की मजाल नहीं थी। अब हम अलग अलग हो गए। आपने भी पढ़ा होगा, हम छोटे थे तो उर्दू की किताब में वो लकड़ियों के गट्ठे वाली कहानी, वो जब अलग अलग हो गई तो तोड़ दी गई। ये जो चीज़ें, ये जो मुआशरे में बुराइयां आती हैं, फिर ये पच जाती हैं, फिर हम लोग उसके आगे, एक बादशाह था, उसने अपने कौम का शऊर देखना था। उसने कहा जी रोज़ यहाँ से सुबह गुजरेंगे तो एक जूता खा के गुजरेंगे। कौम आती, आराम से जूता खाती निकल जाती। अब उसे हैरत हो रही कि कोई एहतजाज नहीं, कोई शिकायत नहीं। ओ भाई कहें तो सही, पूछें तो क्यों लग रहा है? अगले दिन उसने कहा अब 2 लगेंगे। अब वो फिर आने लगे, 2 हफ्ता गुजर गया। अब वो परेशान हो रहे कि मेरी कौम क्या कर रही है। फिर 3 हो गए। जब 4 पे आया तो वो खुद झिला के बोलने लगा कि मुझे अब इनको जगाना है। तो कुछ शिकायत आई कि साहब बात करनी है। बड़ा खुश हुआ, सारी रात खुश हुआ कि शुक्र है किसी का ज़मीर तो जागा। उसने लगा ली कचहरी, पूछा हाँ जी। अब वो सोच रहा है कि पूछेंगे तो है दिमाग ख़राब है, कौम को अपनी जूते लगा रहे हो। कहते हैं ज़रा जल्दी बुला लिया करें, वो काम पे जाते हुए देर होती, 4 जूते खाने में देर लग जाती है। तो हमारा वो हाल है। हम अपनी तकलीफ़ को इस तरह से लेते हैं जैसे पीस ऑफ केक है। आज दुखता है, कल उसको अपना लेते हैं, फिर जो बोलता है बुरा लगता है, जो कहता है बुरा लगता है, जो इस तरफ ध्यान दिलाता है बुरा लगता है, क्योंकि शऊर अपना भी इस्तेमाल में नहीं आना और हमें जगाना भी नहीं। अंग्रेजी का एक इडियम है कि आई वांट टू हैव द केक एंड ईट इट टू। मतलब मैं केक रखना भी चाहता हूं और उसे खा भी लेना चाहता हूं। ये हाल हमारा है। क्यों है? ब्रेक के बाद। बाय द वे, महंगाई की जहां तक बात है, अभी जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो मैंने अभी अभी इस ट्रांसमिशन में सुना है। याद है? ब्रेक के बाद।
All right जी, once again welcome back and I am with Ufaira in Tank Kitchen. तो बताइए प्लीज क्या है आज? अस्सलाम वालेकुम। आज टैंक के किचन में बन रहे हैं ड्रम स्टिक्स, स्पाइसी ड्रम स्टिक्स बन रहे हैं जो कि सबरोसो के ड्रम स्टिक्स हैं। ये वॉश्ड होते हैं, कटेड होते हैं, वॉश्ड होते हैं, कट होते हैं और इसको आप लाके घर पे फ़ौरन पका सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी मैरिनेशन बताती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कप पानी लिया हुआ है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून लेमन जूस। ये हमारी मैरिनेशन नंबर 1 है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली पेस्ट लिया है, ग्रीन चिली पेस्ट, और इसमें 2 टेबल स्पून में जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ। इसको हम मिक्स करके यहाँ पे हमने ड्रम स्टिक्स पे 3 कट मारे हुए हैं। इसको हम मैरिनेट करके, अच्छा कितनी देर के लिए मैरिनेट ये करेंगे? तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इससे Okay. ये ड्रम स्टिक्स जूसी हो जाएंगे। और एक ड्रम स्टिक जब हम बनाते हैं तो अंदर थोड़ी सी हीट या ब्लड वगैरह कुछ इस तरह का रह जाता है तो वो कंप्लेन नहीं होगी। अच्छा जी, इसमें मैं सेकंड मैरिनेशन में आती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ टोमेटो केचप। इसके साथ मैं इसमें ले रही हूँ पैपरिका पाउडर अराउंड 1 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें हम पिसी लाल मिर्च नहीं ले रहे हैं। पेपरिका पाउडर जो है वो कलर बहुत अच्छा देता है। क्रश्ड रेड चिली लिया है, रेड चिली फ्लेक्स। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है और इसमें मैं साथ में ऐड कर रही हूँ मैदा अराउंड 2 टेबल स्पून। ये बाइंडिंग के लिए? हाँ, थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ाइए। ये बाइंडिंग के लिए हो। और कॉर्नफ्लावर स्टिफनेस के लिए, ये भी तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया। ओके, ये हमारी सेकंड मैरिनेशन हो गई है। इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें हम 20 मिनट्स अराउंड 10 to 20 मिनट्स रख के इसमें हम तकरीबन 10 to 20 मिनट्स अगेन रखेंगे। फिर यहाँ पे मैदा और कॉर्नफ्लावर में इसको हम रोल करके इसको आराम से फ्राई कर करेंगे लेंगे जी। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम भाई आपकी तरफ आता हूँ, कुछ अगर कलाम अता हो जाए। जी साहिर भाई, वो कलाम जो सबीर रहमानी हरम पाक की फ़ज़ाओं से वापसी पर लौट कर आए थे तो उन्होंने कलाम लिखा था। सबीर रहमानी कहते हैं, खुशा वो दिल हरम पाक के फ़ज़ा में था। ज़बान खामोश थी लेकिन ज़बान खामोश थी, दिल में है वे इल्तिजा में था। तवज्जो करता हूँ शेर, डॉक्टर साहब तवज्जो साहब। दारे करम पे सदा दे रहा था, अश्कों से जो मुल्तज़म पे खड़े थे, मैं उन गदा में था। और कैफियत देखिएगा, खिलाफ़े
خدا سے عرض و گزارش کہ انتہا میں تھا. اور صاحب ساحر بھائی یقین دیکھیے گا, یقین کیا ہے؟ مجھے آپ یقین دیکھیے گا, مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا, مجھے یقین ہے میں پھر بلایا انشاءاللہ. ساحر بھائی کے آنسو بتا رہے ہیں بلائے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا. کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا. زبان خاموش تھی دل میں التجا میں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں بچہ تھا تو میں نے اپنے والدین کو بجٹ بناتے ہوئے دیکھا تھا. ظاہر ہے ہم 4 بہن بھائی اور میرے دونوں پیرنٹس کام کیا کرتے تھے, اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ انہوں نے بڑی محنت کی, دونوں نے بہت محنت کی. اور میں نے رات کو 2-2 بجے اپنے پیرنٹس کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بحث کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم کیسے سیونگز کر سکتے ہیں. ان کا مطمع نظر کیا تھا؟ مطمع نظر یہ تھا کہ بچوں کی تعلیم جو ہے اس پہ کمپرومائز نہ ہو. دونوں کا اسپیشلی مائی مدر, دونوں کا یہ مطمع نظر تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم 4 بہن بھائی الحمدللہ تعلیم سب سے پہلے ہماری فوقیتوں میں رہی. ملک کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے. حکمرانوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ پرائیورٹیز کہاں رکھنی, پرائیورٹیز کدھر رکھنی. اور میں صرف کرنٹ حکومت کی بات نہیں کر رہا, تو اس کو پلیز یہ مت لیجیے گا, نہ میں اس سے سابقہ حکومت کی بات کر رہا ہوں نہ اس سے سابقہ. میں 1947 سے لے کر اب تک جتنے بھی ادوار آئے ہیں میں ان تمام ادواروں کی بات کر رہا ہوں. مجموعی بات. دیکھیے کیا پاکستان میں تعلیم کو وہ اہمیت دی گئی؟ بیکاز تعلیم وہ شعبہ ہے, تربیت وہ شعبہ ہے کہ جہاں اگر آپ اسے اہمیت دے دیں تو وہ آپ کے لیے ایک بہتر نسل تیار کر دیتا ہے. میں جب بریک سے واپس آؤں گا تو اس پہ بحث کریں گے کہ کیا واقعی ہم نے تعلیم کے لیے اتنا خرچہ کیا جتنا خرچہ ہم باقی چیزوں کے لیے کیا کرتے تھے. کیونکہ اگر ہم تعلیم کو فوقیت دے دیتے تو ہو سکتا ہے ہم پاکستان کے بہت سارے مسائل کو ویسے ہی حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے. بریک کے بعد اور جی واپس آ گئے ہم. ڈاکٹر صاحب بات تعلیم کی ہو رہی تھی, تو کیا واقعی ہم نے میری ایک شو پہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم آئے اور انہوں نے بڑی کمال بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں ہر چیز ہو جاتی ہے, کرفیو لگ جاتے ہیں, ایمرجنسی لگ جاتی ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہو جاتی ہیں, بل پاس ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, کیا ہم نے کبھی تعلیم کی ایمرجنسی لگائی؟ سر بتائیے.
साहिर भाई बात यह है कि तालीम मुल्क के दिफा का सबसे बड़ा सिपाही है, हथियार है। वो आपके लिए वो सिपागर पैदा करता है, वो शऊर पैदा करता है, वो मुआशरा पैदा करता है जिसमें ये मालूम होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्या करना है। हम दुनिया भर के बहुत सारे निज़ाम आए मुमलिकत को देखते हैं, निज़ाम तालीम को देखते हैं। अपने वतन के मुतालिक सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि मुखलिस हमेशा रहे लोग, मैं नहीं कहता कि गैर मुखलिस रहे, लेकिन शायद हमारी तवज्जो उस तरह नहीं रही जैसे तालीम पर हमें तवज्जो देनी चाहिए थी। और नतीजा ये कि प्राइमरी की सतह में जो एक उस्ताद पढ़ा रहा है, जब वो एक जूता नहीं खरीद सकता अपने लिए नया, वो आप घर के अंदर उसकी वो अपनी औलाद को किसी स्कूल में, बेहतर स्कूल में या जो भी अपना स्कूल है उसकी किताबों के साथ उन बच्चों को दाखिला नहीं दिलवा सकता कि यार मैं तालीम इसको दिलवाऊंगा तो कैसे दिलवाऊं। तो अब आप ये सोचिए कि जो इंसान खुद ज़हनी दबाव का शिकार हो, वो नस्ल जो बच्चों की वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में आ रही है, मैं सरकारी सतह के स्कूल की बात कर रहा हूँ, और फिर उस पर जो लोग बैठे हुए हैं फैसला साज क़ुव्वतें, डिसीजन मेकर्स, उनका बड़ा अजीब मामला, उनकी दिलचस्पी कितनी है और मेहमान खुसूसी बनने में ज़्यादा दिलचस्पी है या वाकई ये इस बात को समझने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि इसमें 200 तालिब इल्म पढ़ते हैं और बैतुल खला 2 हैं और दोनों के दोनों उबल रहे हैं, और जो बच्चे छोटे आ रहे हैं उनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं, उनके बैठने के लिए आप टाट बिछाते हैं वो भी मोहल्ले वाले देते हैं। ये हकाइक है, ज़मीनी हकाइक है। और फिर जिन स्कूलों को कायम होना चाहिए था वहां आपने अस्तबल बनवा दिए। इसके बाद आप ये कहें, मैं तो एक छोटी सी मिसाल दी है मैंने, अब आइए कॉलेजेस की तरफ, कॉलेजेस का क्या हाल किया हुआ है हमने, और उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ आइए। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद में, मेरी बात, क्या अच्छी तालीम महंगी है? मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी की 10 रस से बाहर है, लफ्ज़ महंगी से भी ऊपर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। महंगी का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है साहिर भाई, आप जानते हैं, आप खूब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि तालीम हमने और तदरीस, इसको तकदीस का महकमा नहीं बनाया है, इसको हमने प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट करके ये कह दिया है कि जो जितना ज़्यादा खूबसूरत एयर कंडीशन के साथ तालीमी इदारा बना सकता है, उतना ही वो कौम को बेवकूफ़ बनाकर इतने पैसे कमा सकता है कि वो नस्लों नस्लों में ख़त्म नहीं होगा। और ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस के साथ साथ, स्कूल्स के साथ साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ आपके वो महंगे तरीन हॉस्पिटल्स भी हैं, जहाँ जहाँ इंसान जिंदा रह सकता है वहाँ वहाँ आपने मौत के पैरादर खड़े कर दिए। अच्छा जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा, हम बात करेंगे फी ज़माना, तो मुझे ये बताइए कि घर लेना बड़ा महंगा हो गया, एक आम आदमी घर ले ही नहीं सकता, हर आदमी को अपना घर बनाने की ख्वाहिश होती है, तो वो घर कैसे अफोर्ड कर सकता है, कैसे ले सकता है, और ये जिम्मेदारी किसकी है घर प्रोवाइड करना? देखिए, सबसे पहली बात तो जहाँ से मैंने पिछले सेशन में भी शुरू किया था कि इंसानियत का फुकदान है। रियासत का काम है, सीधी सीधी बात है, ये तो रियासत और हुकूमत का काम है कि वो जो है एक ऐसी फ़ज़ा कायम करे जहाँ इंसान सांस ले सके, मतलब छत प्रोवाइड करे, सांस ले सके, सांस ले सके, ठीक है। एक ऐसा माहौल होना चाहिए, एक ऐसा निज़ाम हो कि हर बंदा ये कहे कि मैं अपने मुल्क में अच्छा हूँ, सही है। कहीं उसे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। चीज़ें जिस हिसाब से महंगी होती चली जा रही हैं और बात हुकूमत की आ गई, तो एक फार्मूला जो है अफलातून ने, आप बेहतर जानते हैं, और अफलातून ने जो है इसको अपने मदीना फाजिला में भी लिखा कि जब हुक्मरान या सियासतदान अवाम को मुंतशिर करना चाहते हैं, उसके जहन को आगे पीछे करना चाह रहे हैं, तो अचानक महंगाई कर देंगे या चीज़ें गायब हो जाएंगी, आटा गायब हो जाएगा। अब आप लगे रहिए आटे की तलाश में, आप उस तरफ जाएंगे नहीं कि वो आपके साथ कर क्या रहा है। कोई भी, मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मदीना फाजिला की बात कर रहा हूँ कि आप उस तरफ जाएंगे नहीं कि हुक्मरान कर क्या रहा है आपके साथ। तो ये जो है महंगाई वगैरह सब कह लें गेम है, क्या है वो क्या करना चाहते क्या हैं। ये वाली जो बात आपने की आटा और चीनी, क्या इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए? जिन चंद लोगों के हाथों में ये हो सकती है, उन्हीं चंद लोगों के हाथों में ये है, तो क्या इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए? भाई आप जब गुफ्तगू करते हैं, उसमें दर्द दिल बयान करते हैं, तो आप सिर्फ इस चीज़ को महसूस करें कि जो बीज बो रहा है और 6 महीने उसके ऊपर लगा रहा है,
उसको खाने के लिए नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। थोड़ा सा मेरे वॉल्यूम बढ़ाइएगा। हाँ जी, आपने बात बार बार एक कही थी ना, इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाएं। आपने एक बात जो बार बार कही थी और जिस तरफ क़िबला अल्लामा साहब ने भी इशारा किया कि जो आपके लिए आपकी बेहतरीन अफ्तारी को सजा रहा है वही महरूम है कि एक महरूम है, एक लुक़मा वहाँ से उस दस्तरख्वान से नहीं उठा सकता। तो क्या वो इकबाल का जो शेर था, वो जो खुशे गंदुम वाला, हाँ, ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी, रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। परवाज में तो ये तो मामला ही कुछ और है। जिस खेत से दहकां दहकां को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खुश है गंदुम को जला दो। हाँ, वो असल में साहिर एक चीज़ ये भी है कि हमने पाकिस्तान बनाया क्यों था। कायदे आज़म ने जो बात कही थी उस डबल स्टैंडर्ड से निकलना था जो हम लोगों के लिए हिंदुस्तान में था, मुसलमानों के लिए। अब यहाँ आकर भी इन 76 सालों में जैसे कि तालीम है, हस्पताल का ज़िक्र हो रहा है, किसानों का ज़िक्र हो रहा है, ज़िंदगी के तमाम शोबा हयात आप देख लीजिए, हर जगह वही डबल स्टैंडर्ड है। तब तो हम एक और कौम, एक और दीन, एक और मज़हब, एक और कल्चर से नवरदाज़मा थे। अब क्या है? बहुत अच्छी बात है। अब क्या है? अब क्या? सिवाय हमारे आमाल की शामत और हमारी बदनीयती के और क्या है? और इसको मतलब ये आप और मैं अगर दुख दर्द ये आज बैठे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि और लोग भी ये दुख दिल में लिए हुए हैं, जाहिर है, और जो इसको भुगत रहे हैं। यानी अल्लाह का शुक्र है कि आपको घर वालों ने तालीम दे दी, वालदा वालिद दोनों ने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उस घराने से थी। कुछ नहीं दे पाए, ख्वाब पूरे नहीं हो सके। अच्छा, फिर जिनको तालीम मिली वो तालीम इस लायक नहीं थी कि वो बेचारे कुछ बन पाते। अच्छा, कुछ तालीम अच्छी है तो क्या हुआ, यहाँ अप्रिशिएट नहीं हुई, वो फिर किसी और मुल्क निकल गए। तो हर तरफ से आप देखिए सबके सब मुजरिम हैं, सबके सब कसूरवार हैं। अच्छा, मैं आप तीनों से एक सवाल करने जा रहा हूँ, माजरत के साथ तीनों से एक सवाल करूंगा, हाँ या ना का जवाब है, हाँ या ना का जवाब, तीनों से एक सवाल है। मुझे ये बताइए, अक्सर जब हम महंगाई की बात करते हैं और हम ये कहते हैं गुजारा नहीं होता, तो एक मशवरा दिया जाता है जो मैं अक्सर शोज़ में सुनता हूँ कि हमें कनात पसंद हो जाना चाहिए, हमें अपने नफ्स को मार लेना चाहिए, हमें सब कुछ कर लेना चाहिए, हमें एक रोटी भी खा लेनी चाहिए, हमें आधा ग्लास पानी भी पी लेना चाहिए, हमें खुद बच्चों के साथ बैठ के बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए, हमें वो सारे आला औरफा काम करने चाहिए और इसी माशरे का हिस्सा बनना चाहिए। क्या ये सही है, हाँ या ना? मैं इससे एग्री नहीं करती। आप एग्री नहीं करती? आप सर, मुझे एक शेर याद आ रहा है, इरशाद। और शेर भी ऐसी बड़ी हस्ती का है कि झूम जाएंगे। उन्होंने पूरे मुआशरे का मुताला किया और उस पर जुल्म और जबर और इस्तबदाद इस आज के मुआशरे से बहुत ज़्यादा था, और अजीब अजीब लोग और ताकत के इस्तेमाल में सबसे आगे अरब का मुआशरा, और इंतहाई बद्दू का मिजाज और बद्दुओं के मिजाज के साथ इंतहा पसंदी। तो हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये शेर मंसूब है जो नज़र करता हूँ। रदीना किस्मतुन जब्बारु फीना, रदीना किस्मतुन जब्बारु फीना, लना इल्मुन वलिल जोहाल मालू। रदीना, हम राजी हो गए, किस्मतुन जब्बारु फीना, कि मेरे रब की जो तकसीम है इस माशरे के अंदर, लना इल्मुन, अल्लाह ने हमारे लिए इल्म अता फरमा दिया, वलिल जोहाल मालू, और वो जो माशरा मोहब्बत करता था पैसों से, दौलत से, जाहिर से, अल्लाह ने उन्हें वो दे दिया। तो ये जो माशरा, जिस माशरे में आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, ठीक है, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, ठीक है, नस्लें चली आएंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, न जाने कितने लोग चले गए और कुछ लोग चले जाएंगे और हम भी सब चले जाएंगे। वो बात आपकी हमारी सबकी हकीकत पसंदाना बात है कि इस वतन अजीज पाकिस्तान को रहना है। जी अल्लामा साहब, देखिए, बुनियादी तौर पर आपके सवाल का जवाब हाँ ना में ना ही है, ठीक है। लेकिन कनात के लिए हदीस में है, अमीर कायनात, जैसे आपने शेर भी पढ़ा, मौला कायनात फरमाते हैं कनात करो। अब हमें और तुम्हें की बात नहीं, वो सबकी बात हो रही है, कनात सबको करनी चाहिए।
तो ये जो आप हमें तुम्हें की बात नहीं, मैं तो जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, कनात की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा ना कि हमें कहा जाता है कि अरे कनात भाई करो, वो सिर्फ तो हमें हमें कहते हैं ना, मैं तो जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, बात उस तरफ तो है ही नहीं। मैं तो मजहब तो कहीं लेके नहीं जा रहा, मैं तो कनात, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा कि हमें मैं भी कनात यही करनी चाहिए। जिम्मेदारी, वो सारी जिम्मेदारी जो डालते हैं वो हम पे डालते हैं, वही तो एक वो नहीं होना असल में कहीं मजहब की तो मैं बात मैंने की नहीं है। मैं कनात की बात कर रहा हूँ, मजहब की बात नहीं कर रहा। कनात तो करनी कनात चाहिए, जी, बस देखिए ये कनात point तो मेरा करनी ये। चाहिए वहाँ नहीं तो। देखिए, जैसे कि इनकी बात को मैं सेकंड करते हुए कहूंगी, जैसे कि गैस बंद कर दी तो अब हम लोगों हाँ। ने उस वक्त खाना बनाना शुरू ये किया। गलत है ना। वही तो कह रहा हूँ, देखिए ना, वही अब बात हम कर रहा उससे हूँ, वही बात आदी हो कर गए, रहा हूँ। अब हम उसकी आदत बना रहे हैं। अरे मुझे आप ये एक बात, आपके पुराने पिछले सेशन वाली बात, ये सही फरमाई, नहीं, वो ये वही गलत बात, है। ये यही- वो बात कर रहे हैं ना। अब हम ही इससे से हम कहा मुत्तफिक जाए नहीं कि हैं। अभी बिजली नहीं आएगी तो अब हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं।
दोबारा पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा, दोबारा आखिरी शेर। सबाओ चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिल हो भले। सबाओ चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिल हो भले। दीवार के तले सलामे खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। दीवार के तले सलामे खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक दो अशार आपसे कुछ मिल जाएं, कोई फैज़याब हो जाएं हम भी। हाज़िरी के मुतालिक ही पेश कर देता हूँ। रमज़ान का महीना है, इल्तिजाएं लोगों की कि मदीने जाएं, तो शायर कहता है, सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, दामन में मुझे अपने छुपा क्यों नहीं लेते, मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, मैं हो। शायर भाई आप भी बहुत अच्छा पढ़ते, मेरे साथ पढ़ लें। सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, दामन में मुझे अपने छुपा क्यों नहीं लेते, मैं आऊं मदीने, मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, घर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, मैं हो तेरा सवाली। और हासिल कलाम शेर, कुछ लोग निगाहों से वो दर चूम रहे हैं, कुछ लोग निगाहों से वो दर चूम रहे हैं, कुछ लोग निगाहों से वो दर चूम रहे हैं, कुछ लोग निगाहों से वो दर चूम रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं सब, हम चूमने वालों की नजर चूम रहे हैं, मैं हो तेरा सवाली। और आखिरी शेर आप सबकी नजर कर रहा हूँ, हाँ कब कहता हूँ कारों का खजीना मुझे दे दो, ऐ लोगों फकत याद करीना मुझे दे दो, जो सबसे हंसी है वो नगीना मुझे दे दो, जो सबसे हंसी है वो नगीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना मुझे दे दो, मैं हूँ तेरा सवाली। जी मैम, आप ब्रेक पे जाने से पहले कोई बात कर रही थी, क्या बात थी वो? महंगाई ही के सिलसिले में है? आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे कनात की और सब्र की। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके इस लफ्ज़ कनात को तो बहुत शर्फ और इज़्ज़त देती हूँ, लेकिन ये कनात नहीं, ये जबर है, ये ज़बरदस्ती है।
یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اور جس کو آپ صبر کہہ رہے تھے وہ میں اس کو صبر نہیں بے حمیتی سمجھتی ہوں. جب آپ اپنے لوگوں پہ ظلم ڈھانا جائز قرار دے دیں یا میں نے صبر مزاج نہیں کہا, بنا لیں. وہ کہتے ہیں کہ صبر کرو. ہاں جی, مطلب اب دیکھیے خدا نہ کرے کہ میں اس قسم کی بکواس یہ کو صبر نہیں ہے, کہوں. یہ صبر ہے ہی نہیں. ہاں یہ صبر نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. اور پھر اس کو ہم نے اپنا لیا ہے. اور اب یہ عالم ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں ہر نئے دن ایک کسی قسم کے نئے ظلم کا, نئی زیادتی کا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس وقت بدلتا ہے جب آپ خود بدلنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ کر لے. خالی دعاؤں سے, وظائف سے کام چلتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کے کافروں کے مر جانے کی دعا کرتے, بدر تک نہ جاتے, صفیں نہ باندھتے, اور اس کے بعد سجدے میں جا کے فتح کی دعا نہ کرتے. پہلے آپ کو خود تیار ہونا ہے, پہلے ہمیں وہ کھیپ تیار کرنی ہے, شعور بیدار کرنا ہے. یہ جو چند لوگ جو بھر گئے جن کے پیٹ, انہیں پرواہ نہیں ہے کسی کی, تو صرف ان غافل لوگوں کی طرف دیکھ کے صرف دشمنیاں پالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ اس کو اپنا فریضہ, اس کو جہاد سمجھتے ہوئے اب شعور بیدار کریں, اب یہ کام کریں. ہر کوئی اپنے تئیں سب کچھ, ہر کوئی ڈاکٹر احمد قادری کی طرح نہیں ہوگا, ہر کوئی ساحر لودھی نہیں ہوگا, ہر کوئی علامہ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ جس میں جتنی کیپیسٹی ہے وہ اتنا تو کر ہی سکتا ہے نا. وہ چڑیا کہاں ہم بھول سکتے ہیں جس نے نمرود کی آگ میں جا کے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اس چڑیا نے آگ تو نہ بجھائی, کوشش تو کی, کوشش تو کی, ہاں بالکل کی. تو ہم اپنے تئیں اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ کسی ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں, کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں, کسی رشتہ دار کے آنسو پوچھ اچھا, بڑے اپنے زبردست بات کی. رمضان ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھ دیں, جگہ جگہ اب تصویریں آ رہی ہوں گی, ہاتھ رکھا ہوا ہوگا لوگوں نے, ہاتھ بھی پھیلایا ہوا ہوگا. الحمدللہ ہم نے امداد کو بھی کاروبار بنا لیا, اور اتنا بڑا کاروبار ہے کہ کوئی حد نہیں. میں تو مطلب حیران ہوتا ہوں اس بات پہ. کبھی کبھی سوچتا ہوں, غالب نے کہا تھا, کل ہی ہم بات کر رہے تھے اس پہ, رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو, ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو. بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے جس کی کوئی دیواریں نہ ہو. بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے, کوئی ہمسایہ نہ ہو اور صاحباں کوئی نہ ہو. پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار, پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار, اور اگر مر جائیے نہا خواں کوئی نہ ہو. رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو, ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو. ریڈیو پہ اکثر میں ایک چیز پڑھتا ہوں, اب اگر مجھے یہ مل جائے اس وقت تو میں وہ پڑھ دوں گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ میں ڈائریکٹلی, بیکاز لائیو ہے یہ, تو یہ میں لائیو ہی کر رہا ہوں. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ مجھے یہ مل سکے اور میں اس کو اسی طرح سے سنا سکوں آپ کو جیسے کہ اس کو سنانے کا حق ہے. اور کبھی کبھی تو اب تو یہ ستم بھی ہو گیا نا, نظر وظر بالکل نہیں آتا, تو جب تک پڑھے نا, مطلب میں چشمہ نہ پہن لوں, تب تک مجھے یہ قریب کی نظر تو بالکل بھی نہیں آتی ہے. جی ریڈنگ گلاسز, جی ریڈنگ گلاسز کی ایج تو ہو گئی. ہاں جی بالکل ہو گئی ہے, ایج تو میری اس سے زیادہ ہو گئی ہے, پر کیا کیا جائے, مجھے اپنی ایج ویج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی آئیے, اب یہ سنیے گا ذرا غور سے. ایک بار ہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے, ایک بار ہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے, ظلم کی رات بہت جلد ڈھلے گی اب تو, آگ چولہوں میں
हर एक रोज जलेगी अब तो, भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर एक शख्स यहां सोएगा। आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगाएगी जमीन अब के बरस। है यकीन अब न कोई शोर शराबा होगा, जुल्म होगा न कहीं खून खराबा होगा, ओस और धूप के सदमे न सहेगा कोई, मेरे इस देश में बेघर न रहेगा कोई। नए वादों का जो डाला है वो जाल अच्छा है, रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बहुत उम्दा। जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी अब तो, आग चूल्हों में हर एक रोज जलेगी अब तो, भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर एक शख्स यहां सोएगा। आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगाएगी जमीन अब के बरस। नए वादों का जो डाला है वो जाल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है। इसी का जो असल गजल थी उसका एक शेर था, और ले आएंगे बाजार से घर टूट गया, जामे जम से ये मेरा जामे सिफाल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब, दिल के बहलाने को भी ये गालिब ये ख्याल अच्छा है। ब्रेक लीजिए। अच्छा जी, अब अंदाज़े बयां है। अंदाज़े बयां में हमारे पास 3 मुकर्रीन हैं और जाहिर है 3 में से कोई एक जो है वो आगे आएगा। अब्दुल मोइज साहब तशरीफ़ ले आइए। अना की तब्दीली क़ुव्वत, आइए तशरीफ़ ले आइए। अब्दुल मोइज साहब यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आइए तशरीफ़ लाइए। जी अब्दुल मोइज, क्या करते हैं आप? मैं बीबी का स्टूडेंट हूँ। बीबीए का? अभी पढ़ रहा हूँ बहरी यूनिवर्सिटी में। बहरा यूनिवर्सिटी में। और आगे प्लान क्या है? मेरा है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बिजनेस किस चीज़ का कुछ सोचा है? मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सोचा है भाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तकरीर के फन से कब आपने तबाज़माई शुरू की? मैंने पहला कदम उठाया, बस समझे ये पहला कदम है मेरा। बस तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। 3 मिनट आपके पास होंगे, 2.5 मिनट पे आपको बजर सुनाई देगा, उसके बाद 30 सेकंड्स होंगे आपको ख़त्म करने के लिए। जी जी, ठीक है जी। जी बिल्कुल इसी तरह से होगा, शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो उन्वान है वो बड़ा मज़ेदार है। इसका नाम है अना। अना बेसिकली होती क्या चीज़ है? अना लोगों ने ना एक गलत चीज़ को समझ लिया है कि अना और गरूर दोनों चीज़ों को लोगों ने मिला लिया है आपस में। अना होती है कि आपको ख़ुद आगे बढ़ने की क़ुव्वत होती है, जबकि गरूर होता है आप दूसरों को नीचे दिखाते हो अपने से। अना, अच्छा ये तो मैंने बात कर ली अना होती क्या है असल में। अब मैं बात करता हूँ कि अना आप लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। बेसिकली लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों से अपने आप को मिलाते हैं, जो कि बहुत एक चीज़ ऐसी होती है कि आपको एहसास कमतरी का शिकार बना सकती है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को जब देखते हो अब वो जीत जाते हैं किसी मुकाबले में आपसे, तो आपको होता है कि यार वो जीत गया मुझसे, तो मेरे अंदर कोई खामी है। आपको अना को इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि आपको ख़ुद पे इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी अना, कि अपने गुजरे हुए कल से आपको आज अपना बेहतर करना है। और मैं अपनी इसका
عنوان کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ جتنے بھی طلباء ہیں، طالب علم ہیں جو بالکل میری عمر کے بھی ہیں، وہ یہی وقت ہے جہاں پہ وہ غلطی کر سکتے ہیں اور وہ بہتر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو آگے جا کے، کیونکہ آگے جا کے ان کے لیے مسئلے بڑھ جائیں گے اور آگے وہ ان کو مسئلوں کے لیے، یہ آگے بڑھنے کے لیے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ان کو بلکہ زیادہ نقصان ہوگا. تو آپ کا ابھی ٹائم ہے ابھی میرے پاس. اچھا، میں اپنا ایک واقعہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل 2 سال پہلے میں خود اس چیز کا، احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا. میں پہلے بہت دوسروں سے اپنے آپ کو ملاتا تھا، ٹھیک، مقابلہ کرتا تھا اور میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا تھا. تو میں کافی ڈپریشن میں بھی چلا گیا تھا. تو میں اس سے نکلنے کے لیے میں نے کیا کیا، سب کچھ اپنے اوپر لے لیا. میں نے ہر چیز اپنے آپ کو اپنے کل سے بیٹر بنانے کے لیے کری. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے بولا کہ یار میں پہلے A گریڈ لاتا تھا، اب مجھے A+ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، میں پہلے اسپورٹس میں پیچھے آتا تھا لیکن اب میں سب سے آگے جا کے، فار ایگزامپل میں بالر تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹسمین بنوں. ٹھیک ہے، اور فٹ بال میں ڈیفینڈر کھیلتا تھا تو میں اب چاہتا ہوں کہ میں اٹیکر پہ کھیلوں. تو بیسکلی میں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو سب کو پہلا قدم اٹھانے کا سب سے زیادہ ضروری ہے، تو پہلا قدم اٹھانا کسی بھی چیز کے لیے. آپ کو ڈن، میں کنٹینیو کر سکتا تھوڑا؟ جی 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. تو میں چاہتا ہوں کہ میں پہلا قدم اٹھانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کے لیے، لیکن جب پہلا قدم آپ اٹھاتے ہو تو منزل آپ کے قریب ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. سر کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پہلا قدم تو انہوں نے اٹھا دیا. اچھی بات ان کی یہ تھی کہ پہلا قدم انہوں نے اٹھایا، لیکن بہرحال کیونکہ مقابلے میں بیٹھے ہوئے اور مقابلے کے حساب میں ابھی نہیں تھے. اچھی بات یہ تھی کہ آپ نے وقت کو پورا کیا. آپ سے جب کہا گیا کہ ابھی وقت ہے تو آپ نے اچھی نصیحتیں تھیں، سب کچھ صحیح تھا، لیکن بہرحال تقریر کے حساب سے نہیں تھا. جی میمونہ. خاص طور سے آج کل کے نوجوان، ویسے تو اب یہ رواج ہو گیا ہے پاکستان میں انگریزی اردو ملا کے بولنے کا، لیکن تقریر میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی. میں اور غلطیاں نہیں نکالتی، سر نکالیں گے، میں صرف ایک ہی نکال دیتی ہوں. تلفظ بہرحال میں اب اس کو انگریزی میں کہتی ہوں ہوپ لیس تھا. سر بھائی، ہمارے علامہ صاحب نے بھی ظاہر کہ اپنا اظہار خیال کیا ہے اور ہماری بہن میمونہ صاحبہ نے بھی یہ بات کی. بہت اچھا ہے، اس بچے نے کم از کم کوئی قدم تو اٹھایا. اور آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی، اس بچے کی گفتگو، میں کہوں گا تقریر جو بھی کہے، اس میں بڑی فطرت کے قریب تھی، کہیں بناوٹ نہیں تھی، بالکل نہیں. بڑا سیدھی اپنی بات کہہ رہا ہے، اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے، اپنی بات کہہ رہا ہے. تو یہ بھی ایک نیا انداز ہے، یہ حسن تھا، ویسے اس کا حسن تھا. یہ حسن اور تھا. سب سے بڑی بات یہ، وہ جو ہم نارملی دیکھتے ہیں نا، ایک خاص انداز ہوتا ہے، تمہارا وہ انداز نہیں تھا. بریلینٹ، بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. وی کین اگری کہ جی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مواد میں کچھ کمی رہ گئی ہو، وہ آہستہ آہستہ آپ کو آ جائے گا یہ ساری چیزیں. بٹ دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ یور اسپیچ واز اٹ واز ویری سمپل، ویری ڈفرینٹ، ویری ڈائریکٹ. اینڈ آئی تھنک دا بیسٹ پارٹ واز ویدر یو اسٹیڈ آن دا ٹاپک اور ناٹ، سم ہاؤ آپ ریزونیٹ کر رہے تھے لوگوں سے، سم ہاؤ تمہاری بات سمجھ آ رہی تھی. سو دیٹ واز بریلینٹ، دیٹ واز ریئلی گڈ. بہت آپ نے جو بات کہی وہی کہ اتنی نیچرل تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا ہے، اور میں اسے سمجھ رہا ہوں کہ یار یہ زندگی کے مسائل ان بچوں کے سور میں کیا ہیں. اور اتنی فطرت کے قریب رہ کر صرف ایک چیز بیٹا سیکھ لو کہ انہی تمام باتوں کو لہجے کے ساتھ بیان کرو تو معاشرہ کہے گا بڑا مقرر ہے، اور اگر اس سے ہٹ جاؤ گے تو تقریر نہیں ہوگی لیکن سچائی وہی ہوگی. نہیں، پہلی بار میں تو بہت عمدہ ہے. بہت اچھے، بہت اچھا. ویری ویل ڈن سر، بہت بہت شکریہ. پلیز تشریف رکھیے، ابھی تھوڑی دیر میں ملاقات ہوگی. I really enjoyed it. Yes, I did too. محمد حسن زئی صاحب، لٹ چکا ہے عام بندہ روشنیوں کے شہر میں. حسن زئی صاحب صرف روشنیوں کے شہر میں نہیں لٹا، بندہ تو کہیں بھی لٹ جاتا ہے، کوئی بھی روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی چیزیں مانگ لیتا ہے. آئیے جی، کیا کرتے ہیں سر آپ؟ میں پڑھتا ہوں. یہ اچھی بات ہے. کہاں پڑھتے ہیں؟ بلدیہ، رشید آباد بلدیہ. اچھا اوکے. اور آگے پلان کیا ہے؟ انشاءاللہ پڑھنا پڑھانا، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں گے؟ انشاءاللہ. بڑی بات. بس 3 منٹ آپ کے پاس، شروع کیجیے.
इस शहर बेमिसाल की रोशनियाँ कातिल हैं सदर आली वक़ार। यहाँ रोज़ ज़ब्त की अमरीयत के बागी किसी मासूम ख्वाब का कत्ल होता है। यहाँ रोज़ कोई दीवाना सहर की आरज़ू लिए रिज़्क़ की तलाश में निकलता है तो रिज़्क़ अजल बन जाता है, लुट जाता है। इस शहर की आंखों को खीरा करती हुई रोशनियाँ हमारी तमन्नाओं की रोशनी तक निकल चुकी हैं सदर आली वक़ार। मगर अफसोस तो इस बात का है कि मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर लखनऊ और दिल्ली के महल्लात छोड़कर कराची की कच्ची आबादियों में बसने वाले जुनूज़ादों को सिले में गालियों से नवाजा गया और उनके पाशिकस्ता और सरबुरीदा ख्वाब किसी मसीहा की तलाश में भटकते रहे, लुटते रहे, मगर कोई मसीहा ना आया। और 158 जानों का कातिल जिसके माथे पर आज़ादी का झूमर गे फांसी की रस्सी को होना था, आज़ादी का झूमर माथे पर सजाए आज़ाद फिरता रहा, मगर कोई मसीहा ना आया। अदालत के कटघरों में इंसाफ तकों पर बिकता रहा और इस शेर के बेटे फकत अंदरूनी सिंध का जाली मिसाइल न होने की बिना पर हर तजलील और तज़हीक के मुस्तहिक ठहरे, मगर कोई मसीहा न आया। हमें देखिए ज़ी वक़ार, हम वो सियाबख्त, वो सियाकार लोग हैं जिन्होंने जिंदगी की खातिर जिंदगी को फरामोश कर दिया। शादमान टाउन में अपने बीवी और बच्चे को खोने वाले बदनसीब शख्स से लेकर आए रोज लोहे की देखती गोलियों का निशाना बनते इस शहर के बेटों तक हर एक जुल्म के जवाब में फकत आज भी मेरे ख्यालों के तपिश जिंदा है कि तराने चलते रहे कि जैसे तख्त फिरौन सजा के जुल्मतों के शहर में लुट चुका है आम बंदा रोशनियों के शहर में, लुट चुका है आम बंदा रोशनियों के शहर में। शुक्रिया। कर लिया आपने? आपके पास टाइम तो भी काफी था, मवाद इतना ही था, हो गया सर? इनके जो एक तो अंदाज़ अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज मुनासिब थी, लेकिन लहजे पे शायद कहीं ना कहीं मादरी ज़बान गालिब आई, जिसकी वजह से तलफ़्फ़ुज़ मुसलसल ख़राब हो रहा था। आप हमसे बेहतर जानते हैं तकरीरी मुकाबलों में एक हद तक छूट दी जाती है तलफ़्फ़ुज़ की और लहजे की, लेकिन यहाँ मुसलसल आखिर तक मुनासिब नहीं था। लेकिन जिस अंदाज़ में ये पढ़े तो उस एतबार से अल्फाज अच्छे थे, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। जी हाँ, वो मेरा ख्याल है कि भाई हमारे खान साहब है, क्योंकि हे नहीं निकल पा रही थी तो भटकना से बटकना था, लोहे को लोए था, तो उससे मुझे लगा ये वाली गलती थी। और बाकी सब कुछ बहुत बेहतरीन था, थोड़ा सा और मवाद होता तो अच्छा था। इस रोशनियों के शहर में तो बड़े वाक़यात होते हैं, ये तो थोड़े से चंद एक और आ जाते तो टाइम पूरा हो जाता। जी थोड़े से और अगर कुछ वाक़यात आ जाते तो टाइम पूरा हो जाता। सही बेटा, आपने अच्छी काविश की है और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। अल्लामा साहब ने भी और हमारी बहन ने भी बात कह दी है, वही बात मेरी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जहाँ आप जिक्र कर रहे हैं कि रोशनियों के शहर में ये सब कुछ होता है, वहाँ यही रोशनियों का शहर बहुत सारे लोगों के लिए बेहतर भी है, मौक़े भी फराहम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी वो देता है जो शायद और जगहों में न मिल सकें। तो उसका कहीं ना कहीं जिक्र जो करना वो ज़रूरी था। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिन अलामतों का जिक्र किया है, जिन चीज़ों का जिक्र किया है, वो ज़रूर इस शहर में मौजूद थी एक ज़माने में। अब आई होप कि हालात बेहतर हैं, आई होप। लेकिन आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी। एक बात मैं तमाम लोगों से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तलफ़्फ़ुज़ को मेरे ख़्याल में डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं और बात करते हैं, तो उस पे आपको मार्जिन दे देना चाहिए। उसका रीज़न ये है, मैं आपको ज़रूर प्रैक्टिस हो तो ठीक हो जाए। हाँ, नहीं ज़रूर, लेकिन मैं चूँकि मेरे पास एक वाक़या है जो मेरे लिए बड़ा मशअल राह है, और वो ये है कि एक डिसर्टेशन हो रही थी। मेरा एक दोस्त था और वो चाइनीज़ था, मेटलर्जी के अंदर उसने मास्टर्स किया और उसे अंग्रेज़ी नहीं आती थी। उसने 3 घंटे अपना वो पेपर पढ़ा है और 3 घंटे हम सब के सब सुन रहे थे, और उसकी मार्क और उसके जो मार्क्स हैं उसको डिडक्ट नहीं किया गया और उसको डिग्री से नवाजा गया।
मेरे अपने साथ ये हुआ, मैं जब पाकिस्तान से गया तो मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी और मुझे कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता था। उस ज़माने में फोर्ट्रान एक लैंग्वेज हुआ करती थी। आप लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसके कोड्स हाथ से लिखे हैं और लिखने के बाद मैंने वो अपने टीचर्स को सबमिट कराएं, उन्होंने मेरे साथ बैठ के उस पर काम किया है। तो मुझे लगता है कि हमको ये मार्जिन्स जो हैं अपने बच्चों को देना चाहिए। इनका अंदाज बहुत खूबसूरत था, अंदाज बहुत प्यारा है। मार्जिन हम नतीजे में दे रहे होते हैं, लेकिन तज़क्कुर तो बहरहाल देना है कि नंबर में दे देंगे। डन। ये ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। और जी वंस अगेन वेलकम बैक। और जी हमारे सब टैंक के किचन में हमारे जो है ड्रम स्टिक्स चिकन, स्पाइसी चिकन ड्रम स्टिक्स रेडी हैं और उसके साथ गर्मा गर्म जो नान है उसके साथ सर्व करें। अब मैं बनाने जा रही हूँ टैंक के किचन में टैंक डेट्स स्मूदी, जो कि सहरी के लिए भी बेस्ट है और इफ्तार के लिए भी बेस्ट है। इफ्तार में आप कुछ भी ना खाएं, सिर्फ एक ये स्मूदी ले लें तो यही काफ़ी है। इसकी मैं रेसिपी आप लोगों को बताती चलती हूँ। यहाँ पर मैंने अराउंड डेट्स लिए हैं, तकरीबन ये 10 से 12 डेट्स हैं। ये पूरा एक मील बन जाएगा एग्जैक्टली पूरा मील बन जाएगा इन बूस्ट ऑफ एनर्जीज, क्योंकि इसमें टैंक भी शामिल है। अलॉन्ग विद दैट डेट्स हैं, दही है, दूध है, शहद है। इसमें मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑफ हनी। वाओ, ऑरेंज टैंक मिलाएंगे आप इसमें या मैंगो? हाँ, ऑरेंज टैंक डिपेंड अपॉन कि सबको क्या पसंद है, लेकिन मैं इसमें ऑरेंज टैंक मिला रही हूँ 4 टेबल स्पून और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। ओके, अराउंड 3 कप्स और इसको हम करेंगे। एंड दैट्स अबाउट इट। Yes. बस यही शामिल होना है इसमें? बस। ओके जी, ऑलराइट जी, सो लेट्स मेक दिस। अच्छा, बहुत आसानी के साथ बन जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जिन चीज़ों की कमी हो जाती है थ्रू आउट द डे, उन चीज़ों को, उन न्यूट्रिएंट्स को ये बहाल करता है। सो मेक श्योर यू ट्राई टैंक। और टैंक के साथ आज हम जो स्मूदी बना रहे हैं, इट्स कॉल्ड टैंक डेट स्मूदी, और ये कमाल है, आराम से फ़ौरन बन जाता है। आई डोंट थिंक 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा ना? 5 नहीं, मिनट बस हो गया, डन। हाँ, इट्स डन, ऑल डन जी। और टैंक डेट्स स्मूदी की एक और ख़ासियत ये है कि बहुत सारे लोगों का रोज़े में शुगर लेवल डाउन हो जाता है, तो ये शुगर स्पाइक्स नहीं देता, ये आपको आपके शुगर को बैलेंस और लेवल भी करेगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास टैंक की स्मूदी, डेट स्मूदी रेडी है। टैंक के बारे में बताती चलूँ, टैंक में मौजूद है विटामिन सी, डी और जिंक, आपको देता है इम्यूनिटी का भी बूस्ट और आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करता है। साथ में बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट, ब्रिलियंसी डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। हमारे किचन में मौजूद है लाइफ बॉय भी। लाइफ बॉय के बारे में मैं कहती चलूँ कि कोई भी काम करने से पहले लाइफ बॉय से हाथ धोना ना भूलें, क्योंकि लाइफ बॉय देता है आपको सेहत भरी ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जजेस जो हैं वो अपना रिज़ल्ट बना लें, और इतनी देर में बन गया, बहुत बड़ी बात है। तो फिर रिज़ल्ट के बाद ही सब कुछ होगा। अब्दुल मोइज़ साहब और तलहा और हसन ज़ई साहब तशरीफ़ ले आइए। अब्दुल मोइज़ और हसन ज़ई साहब तशरीफ़ ले आइए। आप दोनों आ जाइए, यहाँ तशरीफ़ ले आइए। जी, ऐसे इनके साथ आ जाइए। ऐसे नहीं, एक लाइन बना लीजिए, सीधे खड़े रहिए यूं करके। देयर यू गो। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या होगा? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आप कुछ नहीं कह सकते, पक्का? आप बताइए। मैं जीतूं या हारूं, मैं यहाँ से कुछ सीख के जा रहा हूँ, ये कह सकता हूँ मैं। क्या बात है, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी वेरी नाइस। तो सर, आप अगर जीत जाते हैं आज, तो आपको क्या लगता है उसके बाद आप कितनी तैयारी करेंगे? जाहिर है जितनी तैयारी की उससे ज़्यादा तैयारी करूँगा, क्योंकि आपने टाइम पूरा नहीं लिया था। जी बिल्कुल, राइट। तो देख लीजिए, 3 मिनट होते हैं आपके पास, आपको 3 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। अगर आप उससे बहुत और आप तो बहुत मुकाबले के, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जो वक्त से पहले ख़त्म। चलें चलें चलें, दैट्स वंडरफुल। अगर आज आप नहीं जीतते, तो जैसे आपने कहा कि आप सीख के जा रहे हैं, क्या अपने अंदाज पे काम करेंगे? हालांकि आपका कंटेंट कमाल है। जी जी, मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि
क्योंकि सीखा है तो फिर काम करना भी पड़ेगा. वेरी नाइस, वेरी वेल डन, वेरी नाइस. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. लड़का है ये, बहुत वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव. मेरा तो ख्याल है दोनों को ही आज रख लेना चाहिए. आप लोगों की मर्जी. अगर जजेस ये कहते हैं, मतलब ये मेरा मशवरा है. नहीं, आप लोग कॉल कर सकते हैं. आप लोग इस पे वजह ये कि दोनों में जो स्पिरिट है ना वो काबिल तारीफ है. आप एक काम मतलब खामियों के साथ साथ जो बहुत पॉजिटिविटी है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है दोनों बच्चों. आप एक काम कर लीजिए, जैसे ये फरमा रहे हैं कि मैंने सीख लिया है और सीख रहा हूँ और हम सब सीख रहे हैं, तो इसको नेक्स्ट उसमें देख लेंगे क्या सीखा है. सही, बिल्कुल सही. ठीक है डॉक्टर साहब. मेरा ख्याल है बहुत अच्छा मशवरा हमारी बहन ने दिया और ये मेरा ख्याल होना. तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आप ऐलान कीजिए फिर. मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और इस चैनल के तवज्जुह से कम से कम लोगों को ये पता हो कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं और जो सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें मौक़े मिलें ताकि वो आगे बढ़ सकें. और बेहतरीन मौका ये कि बच्चा बहुत पॉजिटिव है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा नतीजा आप देंगे. और साहिर भाई तो जब आपको मज़ीद समझाएंगे इंशाल्लाह तो वो तो बेहतरीन होगा. तो अब्दुल मोइज़ साहब और मोहम्मद हसन ज़ई साहब, आप दोनों आगे जा रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. दे हैव ट्रस्टेड यू एंड दे आर आस्किंग यू. जी अच्छा ये भी हैं, तो ले आइए, आप ही ले आइए, आपसे ले लूँगा मैं. इतना क्या है. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. नेल्सन वालों की तरफ से हमारी नेल्सन की जानिब से आपको ये तोहफे हों. और आप पे ट्रस्ट किया इन सब ने, तो अब आपने मेहनत करनी है. और आप सर आगे जा रहे हैं, आपने भी मेहनत करनी है, अपना टाइम पूरा लेना है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. सलामत रहो. एक कलाम है जो मैं करना चाहता हूँ. मेरे पसंदीदा तरीन कलामों में से एक कलाम है. डॉक्टर साहब को भी वो कलाम पसंद है. मैं तो आपसे आज कर रहा था कि आप कुछ ना कुछ तो पढ़ें. जी मुझे समझ में नहीं आएगा बिल्कुल. इसको खोलिए और इसको भी खोलें. प्रॉपर आएंगे, इसी से आएंगे, लेकिन वो देख लेना. तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह. तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह. दिलम पजमुर्दा वारा, दिलम पजमुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल
کردا خویش ہے رانم سیاہ شد روز اسیانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا دلم پجمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ تنم. اور آئی جی ونس اگین تھینک یو جی, ویلکم بیک. اور کلوزنگ ہے تو مہنگائی کا جن کیسے قابو ہوگا؟ ایمانداری سے اور دیانت کے ساتھ تجارت سے اور اس احساس سے کہ جو غریب ہے اسے زندہ رہنے کا حق ہے اس معاشرے میں. امیر کو امیر ہو جائے کوئی بات نہیں, لیکن اس درجہ نہیں کہ وہ دوسروں کی قبریں کھود کر اس پر اپنے محل بنائے. میں تو کہوں گی شعور بیدار ہونا چاہیے. شعور بیدار ہونا چاہیے. جی سر. شروع سے ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں, جب انسان بن جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مہنگائی وغیرہ تو بہت چھوٹے مسئلے ہو جائیں گے اس کے سامنے. پہ انسان بن جائے بس. انسان. سر آپ بھی بول دیجیے مائک. اور لالچ چھوڑ دیں, اللہ کی ذات پہ ہمیں پختہ یقین ہو تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے. بچپن میں وہ نظم یاد ہے آپ کو؟ تو پھر سو ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے گا دن رات بجا کر منقارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. وہ تو ہے لکھی بنجارا اور کھیپ بھی تیری بھاری ہے, اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کیوں اتنے بوجھ جانے دیجیے. بہرحال کوشش ہے, کوشش ہمارا فرض ہے اور کوشش ہم سب کر ہی رہے ہیں. علماء ساتھ ہیں, لوگ بات کرتے ہیں. سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آپ ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں. کہیں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. ہم انسان ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن باخدا کوشش صرف ایک ہے کہ کسی طرح سے اور یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں یا معاشرے کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو مبرہ کرتے ہیں. نہیں, ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اور ہمارے بعد کوئی اور چیز آتی ہے. تو اصلاح کا پہلو تو ہر جگہ نکلتا ہے. آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا, ہم آپ کے حق میں دعا کریں گے, اور بس ہوپ فلی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے. شاہد بھائی ایک بات جاننے سے پہلے سر کہ ہم اگر ملک کے لیے بات کرتے ہیں اور خاص طور پر تنقیدی پہلو ہوتا ہے تو اس کا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت یا سوال ہی کسی نہیں فرد پیدا. یا کسی عقید و مسلک پر نہیں, بلکہ ہم تو اصلاح احوال اپنے آپ کے لیے بات کرتے ہیں. بالکل تاکہ میرا وطن عزیز پاکستان ترقی کرے, تو یہی زندگی کی سب سے بڑی ترقی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ بریک ہے, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है चांदनी में डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नुमा आज की रात है कौन जलवा नुमा आज की रात है मांग लो चश्मे तर मांग लो कि दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो मांगने का मजा आज की रात है अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए आसमां से मलाइक है आए हुए खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए किस कदर जाफिजा आज की रात है किस कदर जाफिजा आज की रात है पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है हुआ आज की रात है सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इलाहुल आलमीन अपने करम ख़ास से इस मुमलकत पाकिस्तान पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब गुनाहगार हैं, इसिया शियार हैं, परेशान हाल है, अपने करम से अपनी रहमतों से हम सब की परेशानियाँ दूर फरमा दे। खुदावंद कुद्दूस हमें इस माह मुबारक रमज़ान मुबारक में क़ुरआन के पढ़ने की और इस पर अमल करने की और इसको अपनी नस्लों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे दरमियान जो भी मुश्किलात हैं ज़ाहिरी व बातिनी किसी भी एतबार से सारी मुश्किलात दूर फरमा कर या अल्लाह हम सब को पाकिस्तान की खिदमत करने और दीन इस्लाम का सच्चा सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हम तेरे अहकामात से और तेरे महबूब की सीरत से दूर हो गए, या इलाही हम पर करम फरमा, रहम फरमा और हम भटकुओं को अपना रास्ता दिखला, ताकि हम किसी और के दरवाजे के बजाय तेरे दरवाजे पर जाकर तुझसे दस्त दराज करके तेरी रहमतों के वास्ते से तुझसे सवाल करें और इल्तिजा करें कि मालिक व मौला हमारी नस्लों को कुरान से और कुरान की मोहब्बत से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा से मुंसलिक करके हमारे घरों को बरकत अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।